Hello, dear students, and welcome once again in our MCQs lecture series for the subject of auditing and taxation for the class of BIBCom. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इनकम के जो हेड्स है उसमें जो आखिरी हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस उसी के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट MCQs यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं our today's first question. An income can be taxed under the head income from other sources when the following conditions need to be satisfied as conditions are A. SEC has an income. Income should not be tax exempt. C. Income should not be taxable under any of the all of। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ दी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में वही इनकम आते हैं जो बाकी के चार हेड्स में टैक्सेबल नहीं होते। तो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दी अबव। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, dash of the following incomes are chargeable under the head of income from, and the options are A. Dividends, B. Interest on deposit, C. Winning from lotteries, crossword puzzles, and D. All of these। And this question's answer is also same D all of, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर्स में ये सब आते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एंड विनिंग फॉर विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड। then next question number 3, graduation income is not taxable under the head of income from other sources। अब यहाँ रिवर्स पूछा गया है and the options are family pension, B. Sum received under man insurance policy, C. Rent received on letting of building, and D. Salary to a member of parliament। तो ये चारों इनकम में से ऐसा कौन सा इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंडर नहीं आएगा? वो इनकम है सी, रेंट रिसीव्ड ऑन रेटिंग ऑफ बिल्डिंग। तो ये जो इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। सो राइट आंसर इज सी, रेंट रिसीव्ड ऑन रेटिंग। Then question number 4, income from land outside India is came under the head of income from dash dash। A. Agriculture, B. House, C. Other sources, या D. Profession या business। So this income came under the head of income from other sources। इस पर हमने इससे पहले जो लेक्चर में हमने इस पर डिस्कशन किया था कि जो एग्रीकल्चर इनकम जो है इंडिया में वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अगर कोई लैंड आउटसाइड इंडिया है तो उसका जो इनकम आता है इट इज fully taxable and it is came under the head of income from other sources। Then question number 5, a winning from lottery is rupees 50,000 and expenses incurred to earn such income is 5,000, so its taxable income is, and the options are A 50,000, B 45,000, C rupees 5,000 या the above। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लॉटरी 50,000 की है, एक्सपेंसेस 5,000 अगर उसमें से हम लेस करें तो 45,000 रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितनी अमाउंट की लॉटरी लगी है उतनी अमाउंट पर वो उतनी अमाउंट टैक्सेबल होती है। सो राइट आंसर इज ए, इज 50,000। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, receipt of dash is taxable under the head income from other sources, and the options are A uncommitted pension received from employer, B income from racing establishment, C rental income from house property, या D income on transfer of rural agro land। तो ये जो पूछा गया है यहाँ पर, receipt of dash is taxable under the head of income from other sources। तो चारों में से कौन सा इनकम आएगा? वो आएगा इनकम जो है बी, इनकम फ्रॉम रेसिंग एस्टेब्लिशमेंट। देखो हॉर्स रेसिंग है, क्रॉसवर्ड पजल है, लॉटरी है, ये जो इनकम आते हैं सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंडर आते हैं। और देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश इज नॉट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। A dividend from cooperative society, B dividend from foreign company,
सी डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, या डी ऑल ऑफ दी अब। तीनों डिविडेंड दिया है, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी। इसमें से जो सी जो है डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, इसका जो इनकम आता है, जो डिविडेंड आता है, इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, लेकिन इट इज fully exempted. So our right answer is C, dividend from domestic company. It is income from other sources, but it is fully exempted from tax. Then question number 8. Dash dash one of the following is not an income from other sources. Interest on fixed deposit in bank, winning from crossword puzzle, gift in excess of rupees 50,000 from an unrelated person, the profit on sale of building. तो देखो इसमें से जो पहले तीन जो इनकम है, ऑल थ्री इनकम्स आर केम अंडर द हेड ऑफ इनकम अदर सोर्सेस, लेकिन जो आखिरी जो डी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग जो है, ये जो जाएगा, इट्स केम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सो आवर राइट आंसर इज डी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग is not an income from other sources. Then question number 9. Dash dash of the following is taxable gift. A. Gift of rupees 75,000 from Assis's father. B. Gift of rupees 75,000 from a friend of SSC. C. Gift of rupees 1 lakh from grandmother of the SSC. Yeah. D. Gift of rupees 25,000 from a friend on occasion of SSC's birthday. तो देखो, ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में गिफ्ट के बारे में बहुत सारी कंडीशंस है। अगर कोई रिलेटिव खुद का जो फादर ग्रैंड मदर जो है, ये जो गिफ्ट देते हैं, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। लेकिन अगर कोई बाहर का फ्रेंड वगैरह जो है, तो उनका जो गिफ्ट होता है अबो रुपीज 50,000, वो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर देखो बी जो है, गिफ्ट ऑफ रुपीज 75,000 फ्रॉम ए फ्रेंड ऑफ द एसएससी, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब डी देखो, गिफ्ट ऑफ रुपीज 25,000 फ्रॉम ए फ्रेंड, ये भी फ्रेंड से गिफ्ट है, लेकिन ये अमाउंट कितनी है, 25,000। और कहाँ तक एग्जेम्प्टेड है, गिफ्ट ऑफ रुपीज गिफ्ट फ्रॉम अदर फ्रेंड, अदर देन रिलेटिव्स इज एग्जेम्प्टेड अप टू रुपीज 50,000। 50,000 तक वो एग्जेम्प्टेड है, उससे ज्यादा अगर होगा तो टैक्सेबल होगा। So right answer is B, gift of rupees 75,000 from a friend of the SEC. In question number 10, the maximum amount of deduction from family pension is rupees, and the options are 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000। इसमें जो डिडक्शंस है फैमिली पेंशन का, उसका अमाउंट है बी, रुपीज 15,000, 15,000 तक फैमिली पेंशन क्या होता है, डिडक्टेबल होता है। देन क्वेश्चन नंबर 11, इंटरेस्ट ऑन यूटीआई इज ऑप्शंस ए फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, पार्टली टैक्सेबल, या नन ऑफ द अबव। तो इंटरेस्ट ऑन यूटीआई जो है, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो आवर राइट आंसर इज बी, इंटरेस्ट ऑन यूटीआई है डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी जो इनकम है, इट्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बट fully exempted from tax. Then question number 12, the rate of TDS from winning from crossword puzzle, horse races, card games and lottery is। तो ये जो है क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, लॉटरी जो है, इन पर इनका जो इनकम आता है, तो उसमें जो टीडीएस का जो रेट है वो फिक्स है, और कितना है, वो है 30%। तो आउट ऑफ द फोर्थ ऑप्शन, राइट आंसर इज डी, 30%। ये फिक्स रेट है, इसी पर एमसीक्यू पूछा जा ही सकता है। लॉटरी पर कितना टीडीएस है, तो कितना है, 30% अमाउंट ऑफ द लॉटरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, the aggregate value of monetary gift received during the previous year is exempted if it dash dash doesn't exceed rupees 50,000, exceed rupees 50,000, exceed rupees 45,000। इसी के बारे में जब से मैं बता रहा था कि जो गिफ्ट जो आता है, अगर रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड वगैरह है, वो जो गिफ्ट देते हैं, तो 50,000 से ज्यादा अगर है, वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। यहाँ पे क्या पूछा गया, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ मॉनेटरी गिफ्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज एग्जेम्प्टेड इफ इट इज डजंट एक्सीड रुपीज 50,000। तो 50,000 से ज्यादा हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो एग्जेम्प्टेड क्या है, 50,000 से कम होगा, तो सो राइट आंसर इज ए, डजंट एक्सीड रुपीज 50,000। Then next question number 14,
the amount of dividend received from cooperative society is partly taxable, partly exempted, fully taxable या fully exempted. तो देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो डिविडेंड आता है इट इज फुल्ली टैक्सेबल. सो राइट आंसर इज द फुल्ली टैक्सेबल. In question number 15, our last question in this lecture, interest on savings bank account is exempted up to rupees dash dash, and the options are 5,000, 10,000, 15,000 and 20,000. तो जो सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट आता है वो 10,000 तक एग्जेम्प्ट होता है. सो राइट आंसर इज बी, रुपीज 10,000. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के, उसी पर हमने आज यहाँ पर 15 एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट है देखे, सॉल्व किए, डिस्कशन किया. जरूर इसका आपको एग्जाम में जरूर फायदा होगा. तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही. और आखिरी जो लेक्चर लेकर आऊँगा उसमें जो है कंप्यूटेशन टोटल टैक्सेबल इनकम और परमिसिबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U. ओके.